hope you all are doing good today. If you're new here, hi, my name is Vaidehi and welcome to my YouTube channel Brown. Today's video is a vlog style video और आज की वीडियो में I'll be sharing with you all one of those days when I was in Ujjain and balancing my work life. This was actually a work trip जहाँ पे मैं पहुंची थी इंदौर, भोपाल और उज्जैन. And finally on the day when I was in Ujjain, पूरा दिन बस में ट्रैवल करके शाम को I was going for my program. Well, other than YouTube, I'm also a social activist and this show was also about social awareness wherein we all dress up in our traditional outfit and give our performances. और आज उज्जैन के इस पावन नगरी में हमारा शो था and honestly I was absolutely not aware about this show. It was pure destiny and I was so excited to witness this amazing city. I was there with my team and all of our bills were paid by respected people who took us with them. आज का हमारा आखिरी दिन था so I thought maybe it's the right time to vlog this part of my life. और क्योंकि हमने एक दिन extend किया था just so that I can witness this beautiful city of Mahakal. And now let me just tell you what was the project and why I was in the city of Mahakal. So as I told you, I'm a social activist. I work with this team known as Asar Foundation in my own city Bhandara. This was a traditional Maharashtrian street play जहाँ पे with the sound of this instrument हम audience को इकट्ठा करते हैं और हमारे भारत का नाम लेते हुए इस शो की शुरुआत करते हैं. The best thing was हमारे शो को विटनेस करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे. People in Ujjain were so welcoming and also mesmerized with our performance. इसी सिटी में हमारा दूसरा शो थोड़ा सा आगे मंदिर के बहुत पास में हुआ. And let me tell you, this नुक्कड़ नाटक और street play was about World's Investor Week, wherein we talked about how people fool us, how you should invest your money and how you should save yourself from fraud people. हमने कई सारे रोल प्ले किए just to make people understand how people can fool them and what are some best ways to invest your money. We also made people understand about SEB, that is Security Exchange Board of India. And last show उज्जैन के मार्केट में खत्म करके we were so happy to go back to our place. This was actually a paid opportunity for our team and finally show खत्म करके we went back to our rooms. I was so relieved and happy क्योंकि हम लोग 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे थे via train and then bus and it was that one night जहाँ पे हमारे पास पूरी freedom थी तो आराम से do things that I wanted to do, get unready, take an amazing shower because next day was purely dedicated to darshan. मैं वापस आके I quickly removed my jewelry, my sari, my makeup and now it was time to go and have an amazing dinner. उज्जैन में I also realized यहाँ पे हर शॉप का नाम या तो महाकाल रहेगा या फिर something related to Shiva. We reached this amazing restaurant. The ambience was so good and beautiful. The best thing was I was allowed to order what I wanted to have and I ordered my special Maharashtrian बैगन भरता with सिंपल सी रोटी. खाना खा के रूम पहुंच के I stopped filming. मैं फटाफट से फ्रेश होके ब्रश करके नहा धोके I quickly went to sleep because next day was very important. I oiled my scalp, I arranged all my outfits and this was me the next morning. I woke up at 8 AM, had my water, had my medicine. I also made sure कि इस पूरे traveling में I'm taking care of my health. I had a lot of water, lot of food. मंदिर जाना था so I quickly had an amazing head to toe shower. इस पूरे journey में I made sure that I'm taking care of my hygiene, my health, my gut and this was my outfit of the day. I wore this beautiful salwar kurta with odni और कुछ 10 बजे के आसपास हमारी पूरी टीम बिना कुछ खाए निकल पड़े दर्शन करने के लिए. This fast या उपवास was not intentional, it just happened और खाली पेट हम पहुंच गए काल भैरव के मंदिर में. इस मंदिर में आकर हमने कई सारी कहानियां सुनी, one of which was to offer alcohol to God. I honestly found it extremely weird. One of our team members also bought this मदिरा की bottle. I'm also sorry if this clip hurt your sentiments, पर यहाँ पे यही होता है. यहाँ पे ड्रिंक एक्चुअली में लोग खरीद के भगवान को ऑफर करते हैं एंड पीपल वर टाइंग मन्नत का धागा टू एवरी सिंगल पुलिस बैरिकेड विच वॉज प्रीटी डिफरेंट टू मी. इट एक्चुअली शोज कि हर एक इंसान को दुख है. नोबडी इज रियली हैप्पी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. वैसे मैंने अल्कोहल परचेज नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस थॉट्स दैट आई हैव. आई ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड मदिरा. ऐसा हो सकता है कि भगवान को मदिरा चढ़ा जाता है and not really McDonald's की bottle. I don't know what's right and what's wrong. It's just my philosophy and that's what I really believe in. तो बहुत दिन के बाद हम लोग आज आए हैं काल भैरव मंदिर. बड़ी क्यूरियोसिटी लग रही थी हम लोग सभी लोगों को कि यहाँ के मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ के काल भैरव जी साक्षात मदिरा का सेवन करते हैं ऐसे हमने सुना था. मी आज खूप दिवसापासून ऐकलं होतं पण आज उज्जैनला आल्यावर अगदी प्राधान्याने मी ह्या मंदिरात आलो, कालभैरव मंदिरात, कारण मला पाहायचं होतं की इथल्या देवांना
मद्य दिलं जातं नैवेद्य म्हणून, आणि माझ्यासाठी खूप आश्चर्यकारक घटना होती आणि मी त्याचा एक आज लाभ घेतला, असं दर्शन केलं आणि ते पाहिलं ही परंपरा काय आहे ती, आणि ती पाहून मला खरंच, मी आयुष्यात पहिल्यांदा, मी संपूर्ण भारत फिरलो आहे पण आयुष्यात पहिल्यांदा मी ही परंपरा पाहिली आणि हे परत आपल्याला तीर्थ म्हणून देतात. कठीण आहे. पण मला हे सगळं बघून एकच म्हणायचं आहे की देवा, हे जे तुला काही नैवेद्य म्हणून देतात आहेत याचा दुष्परिणाम लोकांच्या परिवारावरती होऊ देऊ नको, म्हणजे मिळवलं. आणि जरा एक वेगळी क्युरियोसिटी आणि वेगळा एक अनुभव आला, त्याच्यामुळे जय महाकाल. जय कालभैरव. I didn't want to comment on this part of the video. I think it's all about everyone's religious beliefs. Whatever feels good to you, do it for yourself. Nobody was allowed to film inside the temple, which needs to be respected, which is why I kept my phone in my bag और दर्शन करके बाहर निकल के we had some फल and इस तरह से हमारा उपवास छूट गया. We also had some नींबू शरबत as energy booster and this was the sad reality of any मंदिर you go. वैसे अगर मन्नत पूरी होती होगी तो एक मन्नत का धागा इसे क्लीन करने के लिए भी बांध लेना चाहिए था. मैंने नहीं किया, आप जरूर करना. Later we went to Mahakal temple जहाँ पे I found this lady driving auto rickshaw. I was happy to see how society is trying to accept these norms. Well, उसके बाद हमने टीका लगाया and now it was time to get inside the temple. यहाँ का infrastructure was so peaceful and beautiful. चलते चलते we also witnessed Gajraj, which is basically this humongous elephant. And the moment we entered the temple, we were welcomed with lot of शिव भगवान की मूर्तियाँ, with lot of people. यहाँ पे भी हमने जूते चप्पल उतारे and now it was time to get inside. Sadly, we were not allowed to take our mobile phones to the mandir, which is why I was not able to film anything about it. मैं सिर्फ बाहर से फिल्म कर पाई, बट व्हेन आई वेंट इनसाइड द टेम्पल आई वाज सो लकी क्योंकि मेरे हाथ से भगवान शिव जी का अभिषेक हो पाया. बाहर आके देयर वाज अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन बिकॉज आई गॉट माय हैंड्स ऑन दिस अभिषेक किए हुए रुद्राक्ष. आई वाज सो हैप्पी टू गेट माय हैंड्स ऑन देम. आई ऑल्सो गॉट माय हैंड्स ऑन दिस डिवाइन रुद्राक्ष का फल जिसे निकाल के अंदर से रुद्राक्ष बाहर आता है. वेल, दर्शन खत्म करके कुछ 3-3:30 बजे हमने खाना खाया एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इन उज्जैन. वी ऑल्सो वेंट टू दीज शॉप्स टू एक्सप्लोर but we haven't got anything for ourselves and now it was time to get back to our rooms. वापस आके हम quickly fresh हुए and this is what has happened. सगळ्यांचा मनापासून धन्यवाद. आणखी आपल्या पुढच्या भविष्यातले प्रोग्राममध्ये नक्कीच मी तुम्हाला संपर्क करेन आणि मी येणार आहे भंडाऱ्याला यांना घेऊन. आणखी आपल्याला खूप ऍक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत. आज 14 तारखेपासून 20 ऑक्टोबरपर्यंत चाललेल्या विश्व निवेशक सप्ताहानिमित्त आदरणीय प्रदीप मून सर यांनी आमच्या असर फाउंडेशनला जी संधी दिली आहे त्याच्याबद्दल आम्ही शतशः त्यांची ऋणी आहोत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही येतो आहे. ते आदरणीय प्रदीप नाईक सर यांचे पण मी मनापासून आभार मानतो. अशीच साथ आम्हाला कायम राहू द्या, एवढा आम्हाला आशीर्वाद. या आता तुम्ही आता प्रदीप और इस तरह से हम सबका आदर सत्कार किया गया, हमें इस ट्रॉफी से नवाजा गया. We were also paid afterwards and trust me this was like once in a lifetime experience. शाम को हम फिर से निकल पड़े to witness उज्जैन की देवी की आरती. दो ऑटो वाले भैया सेड की आरती खत्म हो जाती है but it was our luck. हम लोग भागे भागे चल पड़े और आरती जस्ट चालू हुई थी. मैंने कुछ 3-4 सेकंड्स के ही क्लिप्स लिए थे because I really wanted to get immersed into the divine energy. यहाँ बहुत ऊंचाई तक दिए जलाए गए थे, गाड़ी की आवाज में यहाँ पे आरती की गई. हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थे, हमें मंदिर के अंदर तक जाने का मौका मिला. द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं एंड दे अग्री दैट देयर इज एनर्जी बियॉन्ड वर्ड्स, एनर्जी बियॉन्ड साइंस. आरती खत्म होते ही हम लोग मंदिर पहुँचे, हमने दिया बाती की, कपूर आरती लेकर हम निकल पड़े उज्जैन का खाना चखने. बाहर जाके वी सॉ दिस पानीपुरी का स्टॉल. वी हैड सम पानीपुरी, सम आलू चटपटा. यहाँ का टेस्ट वाज क्वाइट सिमिलर टू महाराष्ट्रा's टेस्ट. और इतना सब खा के हम निकल पड़े वापस अपने रूम की तरफ. वापस आके आई हैड एन अमेजिंग शावर बिकॉज नेक्स्ट डे हमें जल्दी निकलना था फॉर आवर सिटी. रात का खाना खाया, सुबह सुबह होटल को बाय बाय किया और हम पहुँच गए स्टेशन. वापसी के दौरान हमने नर्मदा नदी का आशीर्वाद लिया और इस तरह से हमारी उज्जैन की जर्नी सफल हुई. आई रियली होप यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.